बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली में सीएम केसीआर का अहम ऐलान, कहा 80,039 ओहदों पर तकरूरी के लिए जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। सरकारी मुलाजमतों को पूर्ण करने सीएम केसीआर के ऐलान का अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया खैर मकदम, कहा सरकारी मुलाजमतों और आला ओहदों पर मुसलमानों की भी की जाए तकरूरी। सीएम केसीआर का सरकारी मुलाजमतों को पूर्ण करने का ऐलान, तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने भी किया इस्तकबाल, कहा कांग्रेस भर्तियों का कर रही थी मुतालबा। सरकारी मुलाजमतों को पूर्ण करने सीएम केसीआर के ऐलान पर तेलंगाना भर में जश्न, टीआरएस कायदीन व कारकुनान, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और बेरोजगार नौजवानों ने सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में वक्फ जायदादों के अदम तहफ्फुज पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम, असेंबली में वक्फ जायदादों के लिए CBCID तहकीकात की पेशरफ्त पर किया सवाल। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन से बीजेपी के अरकान की मुअत्तली, रियासती हाई कोर्ट ने की मामले की समाअत, असेंबली और सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज को जारी किया नोटिस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजमतों पर तकरूरी के लिए रियासती असेंबली में अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 91,142 मुलाजमतें खाली हैं, उनमें 80,039 मुलाजमतों पर तकरूरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें से ज़्यादा महकमे तालीम के 25 तक 30,000 जायदादें शामिल हैं। इसके साथ ही हुकूमत ने 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा करने का भी फैसला किया है। इसके साथ सीएम ने मजीद कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों को इन जायदादों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यकसा खिदमात जैसे महकमे पुलिस के सिवाय दीगर ओहदों के लिए हद उम्र OC के लिए 44 बरस, SC, ST, BC के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिक फ़ौजियों के लिए 47 बरस होगी। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि इन जायदादों पर तकरूरी से रियासती हुकूमत के सरकारी ख़जाने पर सालाना 7,300 करोड़ रुपए का बोझ आयत होगा। మొత్తం తెలంగాణ మన ఉద్యోగుల విభజన చేసిన తర్వాత మొత్తం ఈ రోజు 91,147 ఖాళీలు ఏర్పడాయి అధ్యక్ష। ఈ 91,142 ఉద్యోగాలకు ఈ రోజు నుంచే మొత్తం నోటిఫై చేసేస్తారు అధ్యక్ష, టుడే ఇట్ సెల్ఫ్। ఇందులో అధ్యక్ష, ఇందులో నేను స్టేట్మెంట్ చదివే ముందు ఒక విషయం చెప్పాల్సిన అక్కడ బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది। ఇందులో అధ్యక్ష, గతంలో హైకోర్టు పోయి ఏవైతే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగస్తుల పొట్టలు నింపాలని మానవీయ కోణంలో మేము రెగ్యులరైజేషన్ ప్రతిపాదించినామో అవి 11,103 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష పిల్లలు। ఇక వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతా ఉంది పాపం, వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం కదా పర్మనెంట్ కాకపోతే ఆస్తితో జాయిన్ అయినారు, సర్వీస్ పాపం ఏజ్ అయిపోతా ఉంది। వాళ్ళు మొదలేస్తే ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు బదారణ పడతారు, అర్ధాకలతో పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఊరుగా కోరుతున్నారు। మొన్ననే హైకోర్టు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష, గత డిసెంబర్లోనే। ఈ వివాదం అయిపోతే చేద్దాం అనుకున్నాం, ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా। ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। మిగిలినటువంటి తమరు ప్రతిపాదించిన మన లెజిస్లేచర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష, అది కూడా చెప్తే నేను డీటెయిల్స్ వస్తాయి। 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే
సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అవుతాయి అధ్యక్ష. దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30 వేలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. గ్రూప్ 1 కేటగిరీ అధ్యక్ష, దానిలో దాదాపు 16 నుంచి 20 వరకు కేటగిరీలు ఉన్నాయి. ఆర్డీఓ, డిఎస్పీ, ఆర్టీఓ, సిటీఓ వగైరా వగైరా ఉంటాయి. అందరికి సభ వారికి తెలిసిందే. అందులో గ్రూప్ 1 కింద 503 పోస్టులను ఇమీడియట్గా నోటిఫై చేస్తా ఉన్నారు. గ్రూప్ 2 కింద 582 పోస్టులను ఇమీడియట్గా నోటిఫై చేస్తారు అధ్యక్ష. గ్రూప్ 3 కింద 1373 పోస్టులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గ్రూప్ 4 కింద 9168 పోస్టులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా జిల్లాలలో జిల్లా క్యాడర్గా ఉంటాయి అధ్యక్ష. దీనిలో నేను మనవి చేస్తా ఉంది ఏంటంటే గౌరవ సభ్యులకు, గతంలో ఈ అవకాశం ఉండేది కాదు అధ్యక్ష. మారుమూల ప్రాంతాల ఉద్యోగాలు కొద్ది తెలివైన వాళ్ళు కొట్టేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎక్కడికక్కడనే ఉద్యోగ అవకాశం రావాలి కాబట్టి భూపాలపల్లి జిల్లాకు భూపాలపల్లిని రావాలా, ములుగు జిల్లాకు ములుగులనే రావాలా, గద్వాలలో రావాలా, ఆసిఫాబాద్లో రావాలి. కాబట్టి లోకల్ క్యాడర్ కూడా నూతన రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం నిర్ణయం చేశాం. ఇప్పుడు నేను మనవి చేస్తాను తమరికి, జిల్లా క్యాడర్ పోస్టులు 39,829. ఇవి ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లానే వస్తాయి అధ్యక్ష. నేను వివరాలు చెప్తాను. జోనల్ పోస్టులు, ఇందాక నేను చదివినటువంటి 7 జోన్లలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఆ జోన్ వాళ్ళకి చెందుతాయి. 18,866 ఉద్యోగాలు. మల్టీ జోనల్ పోస్టులు 13,170. విశ్వవిద్యాలయాలు, సచివాలయం, హెచ్ఓడీలు వగైరా కలిపి 8,147 उद्योग। तेलंगाना असेंबली में सरकारी मुलाजमतों पर भर्तियों के मुतालिक वज़ीर आला KCR के अहम ऐलान पर रद्दमल जाहिर करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस पार्टी की जानिब से CM KCR के ऐलान का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल किया कि क्या मुलाजमतों के मुतालिक किए गए इस ऐलान पर अमल भी किया जाएगा। उन्होंने मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार करने वाली TRS हुकूमत से सवाल किया कि क्या मुसलमानों में कोई एक भी यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर बनने की काबिलियत नहीं रखता। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। उनका कहना था कि सरकारी मुलाजमतों और आला ओहदों पर भी काबिल मुसलमानों की तकर्रुरी की जाए। Honorable Speaker, sir, before I go on the discussion on the budget, state budget for the year 2022 and 2023, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister Sahab for making the announcement for the recruitment in the government department. बहुत देर से ये मुतालिबा था और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान के ज़रिए रियासत की आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ा दी कि इतने सारे तकर्रुरात का ऐलान किया। ना सिर्फ वैकेंसीज को फिल करने का ऐलान किया बल्कि उसके साथ ही साथ ये भी ऐलान किया कि जितने भी जो लोग काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको भी रेगुलर करेंगे और सालाना हर वैकेंसी जब भी आएगी उसको पुर किया जाएगा। ये काबिल मुबारकबाद इक़दाम है जिसके लिए मैं अपनी पार्टी की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब को, रियासती हुकूमत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। अब सवाल यह होगा कि आज इतने रिक्रूटमेंट का ऐलान किया गया, ये भी होंगे या नहीं? क्योंकि मेरे साथ तो यह तजुर्बा, मेरे साथ तो यह हुआ, मुसलमानों के साथ तो यह हुआ। सर, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी मुसलमान नहीं, पब्लिक प्लीडर एक भी मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी कमीशन में नहीं। क्यों बताइए सर, क्या एक मुसलमान को नहीं बना सकते? एक मुसलमान भी वाइस चांसलर नहीं है इतनी यूनिवर्सिटीज में। आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं TRS के मेंबर से, मेरी बात गलत है तो बोलो, क्या मुसलमानों में एक भी काबिल नहीं है जिसको VC बनाया जा सकता? क्या मुसलमान में एक भी नहीं है जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन बनाया जा सकता? क्या मुसलमान में कोई भी काबिल नहीं है कि उसको एक पब्लिक लीडर बनाएंगे? मुसलमानों से हमदर्दी की बात है, लेकिन आज यह चीज नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि प्लीज कुछ करिए इस पर। अगर आप नहीं करेंगे
तो फिर नहीं होगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व हल्के असेंबली संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने सरकारी मुलाजमतों पर तकरूरी के लिए सीएम केसीआर की जानिब से आज असेंबली में किए गए ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इसका खैर मकदम किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस ऐलान पर वज़ीर आला केसीआर का शख्सी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुल्हिका तंजीमें NSUI यूथ कांग्रेस ने मुलाजमतों की फरहमी के मुतालबे के लिए धरना दिया था। మరి ఈరోజు 91,000 ఉద్యోగాలు ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రకటించిన దాన్ని నా వ్యక్తిగతంగా నా నియోజకవర్గంలో ఎంతో కొంత ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళ పక్షాన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ భర్తీ విషయంలో ప్రకటన వచ్చిన దానికి నేను వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది। సరే, ఈ యొక్క పనులు కూడా వేగవంతం జరుగుతాయి అని ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగానే ఈరోజు వారు ప్రకటన అంటే వారి ప్రకటనతోటే జీవోలు కూడా ఇష్యూ అయితే అనే మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में TRS की रुकन के कविता ने सरकारी मुलाजमतों पर तकरूरी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के आज असेंबली में अहम ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इसका इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के मौके पर हम पुरउम्मीद थे कि इस खित्ते को रियासत का दर्जा मिलने पर हमारी मुलाजमतें हमें हासिल होंगी। उस वक्त सदर जमहूरिया के अहकाम में 30% नॉन लोकल मुलाजमतें फराहम की जाती थी। ताहम मौजूदा तौर पर रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 7 साला मसाई के नतीजे में 95% मुलाजमतें हमारी रियासत के नौजवानों को हासिल हो रही हैं। निज़ामाबाद अर्बन MLA B गणेश गुप्ता के कैंप ऑफिस में शानदार पैमाने पर आतिशबाजी, मिठाइयों की तकसीम और जश्न मनाते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से असेंबली में जायदादों पर भर्तियों के मुतालिक ऐलान का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी तारिक अंसारी ने कहा कि भारत की नंबर 1 रियासत के CM KCR ने असेंबली में 91,000 से ज़ायद मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत क़ानूनी और सियासी पेचीदगियों से पाक जायदादों पर भर्तियों का ऐलान किया है। आज का दिन इनकलाबी दिन है जो रियासत तेलंगाना की तारीख में सुनहरे हुर्फों से लिखा जाएगा। CM KCR वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने रियासत के तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करते हुए रियासत तेलंगाना के नौजवानों के दिलों में एक नई उमंग पैदा कर दी है, जिसका पूरी रियासत में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जा रहा है। तारिक अंसारी ने मजीद कहा कि आज रियासत तेलंगाना में आवाम के तमाम तबक़ात बिलखुसूस नौजवानों में देरपा खुशियों और मसरतों का माहौल क़ायम हो गया है। एक अजीम शाह एक बहुत बड़ा कारनामा जो है ऐलान किया गया है जनाब हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर जनाब KCR साहब की जानिब से, क्योंकि तेलंगाना की रियासत को हासिल करना तो बड़ी मुश्किल का काम था। तेलंगाना को हमने हासिल किया KCR साहब की लीडरशिप में। उसके बाद पानी, पैसा और ये जो है बेरोज़गारी को जो है जॉब दिलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। लेकिन KCR साहब ने पानी भी जो है इसका पानी का मसला हल करे और पैसे जो है हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। और अब रहा तो जो है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो पढ़े लिखे नौजवानों को जो है रोज़गार का मसला था। आज 91,000 जो है भर्ती पोस्टों को जो है ऐलान करके असेंबली में KCR साहब ने ये साबित कर दिया कि जो यकीनन हम तेलंगाना को हासिल कर चुके और नौजवानों, करोड़ों नौजवानों की जो है उम्मीद की किरण थी जनाब KCR साहब, गरीबों के मसीहा थे KCR साहब। आज नौजवानों की जो है यकीनन उनकी उम्मीद की किरण बनकर जो है इतना सारा ऐलान, ये बहुत बड़ा कारनामा है जनाब KCR साहब की गवर्नमेंट का। मैं आज नौजवानों, तालीम याफ्ता नौजवानों की जानिब से, हमारी निज़ामाबाद की अवाम की जानिब से मैं KCR साहब को जो है इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ और तहे दिल से जो है उनको जो है मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। सरकारी मुलाजमतों पर तकरूरी के मुतालिक तेलंगाना के CM KCR के आज असेंबली में अहम ऐलान के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के लीडरों और कारकुनों के अलावा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और बेरोजगार नौजवानों ने शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया, मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए CM KCR से भी इजहार तशक्कुर किया। जय KCR, जय KCR, जय KCR, जय KCR, निरुद्योगुल आशा ज्योति जिंदाबाद। तेलंगाना के नौजवानों को बेहतरीन उनके अंदर एक नई जान डाले हैं तेलंगाना रियासत के अंदर, और ये हिंदुस्तान में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती
जो 1 लाख जॉब एक साथ दिए हैं। तेलंगाना आने के बाद 2 लाख जॉब देने का केसीआर साहब का वायदा था, जो 1,53,000 अभी तक दे चुके हैं। उसके बावजूद भी 91,000 जॉब देते हुए एक नौजवानों के लिए एक बेहतरीन एक मिसाल कायम किए हैं। ये हिंदुस्तान में ऐसी मिसाल होना चाहिए। हम कहते हैं यहाँ की जो तरक्की है ये सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, और इसी के लिए केसीआर साहब जो यहाँ कारनामे करे हैं ये इनफरादी तेलंगाना के लिए है। हम यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में भी ये कारनामे करे, और हिंदुस्तान में केसीआर जैसा लीडर चाहिए तो हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। तो इसीलिए हम केसीआर साहब से भी हमारे नौजवानों की अपील है कि ये कारनामे जो करे हैं आप, ये कारनामे हिंदुस्तान के अंदर जाके भी करें। और हम यहाँ के नौजवान हर मज़हब के लोग आपके साथ हैं, हर तेलंगाना का हर फर्द आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। आप केसीआर बढ़िए, हिंदुस्तान में आपका राज करना है, और यहाँ के लोग आपसे खुश हैं, और यहाँ के नौजवान आपसे बहुत खुश हैं, सारा तेलंगाना आपसे खुश है। తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తము, తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తము 91,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రకటన చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు 91,000 యువకులకి ఉద్యోగాలు తెలంగాణ రాష్ట్రము మొత్తం రావడము చాలా సంతోషకరము. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ రోజు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ప్రత్యక్షంగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ సైతం రెగ్యులర్ చేస్తారని చెప్పేసి ప్రకటించడం నిజంగా మా కుటుంబాల్లో హర్షించదగ్గ విషయము. ఈ సందర్భంగా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి, అలాగే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండి మాకు వెన్నంటూ ఉండి రాష్ట్రంలో ప్రతి కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకు నేను ఉన్నానంటూ రెగ్యులరైజేషన్ వరకు కూడా సహకరించినటువంటి మంత్రి హరీష్ రావు అన్న గారికి కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కళాశాలల్లో సీఎం చిత్రపటాలకు, హరీష్ అన్న చిత్రపటాలకు మేము పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నాం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आपके और हमारे हर दिल अजीज कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब एक तारीखी जो है मतलब ऐलान करें। असेंबली के अंदर असेंबली को गवाह रखते हुए, सारे तेलंगाना की आवाम को गवाह रखते हुए आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोजगार नौजवान है, पढ़े लिखे, वो लोगों के लिए जो है मतलब बहुत बड़ा जो है ऐलान आज असेंबली के अंदर कर रहे हैं। इसका हम तमाम बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है मतलब माइनॉरिटीज़ की तरफ से स्पेशली और टीआरएस पार्टी की तरफ से इसका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सीएम साहब जो वादा करे हैं उस पर जो है 100% खरा उतरे। जय तेलंगाना। तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में हुकूमत पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि माजी की हुकूमतों के दौर में भी वक्फ जायदादों पर कब्जे होते रहे और मौजूदा टीआरएस हुकूमत के दौर में भी हो रहे हैं। उन्होंने वक्फ जायदादों के मुतालिक CBCID की तहकीकात की पेशरफ्त के बारे में भी सवाल किया। खाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या आप चैंपियन नहीं बने थे? दिल पे हाथ रखकर बोलो, क्या हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ की जमीन के लिए क्या आप नहीं लड़े थे मेरे साथ? क्या हाईकोर्ट में टीआरएस नहीं गई थी? क्या बोलकर गई थी? यह वक्फ की जायदाद है। तेलंगाना एजिटेशन, तेलंगाना मिल गया, हुकूमत में आ गए, आने के बाद वही किया। सर मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। वही किया जो कांग्रेस ने किया, वही किया जो तेलुगु देशम ने किया। नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई, वो ये हुई कि इख्तिदार में आने के बाद हुसैन शाह वली की जमीन गवर्नमेंट लैंड है बोलती है टीआरएस की हुकूमत। क्या इंसाफ है? हुकूमत में नहीं थे तो वक्फ की थी, हुकूमत में आ गए तो गवर्नमेंट की। पूरी जमीन चले गई, पूरी जमीन चले गई। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड मुकदमा हार गया टेक्निकल रीजंस की वजह से। अरे आज दे सकते थे। प्लीज कंक्लूड सर। आई एम कंक्लूडिंग सर, बट आई हैव टू से सर। सर मैं बोलना चाह रहा हूं, इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि मुझे बोलना जरूरी है सर। सर पहले तो पूरा असेंबली
कट हो गई, 5 दिन 6 दिन चल रही है। क्वेश्चंस आते हैं, 5 दिन में एक क्वेश्चन आएगा हमारा, और उसके बाद में अगर कम वक्त में बोलूं तो फिर मेरा इस ऐवान में आना ही बेकार है। मुझे बोलने दीजिए सर, इस वास्ते कि मजबूर होकर कह रहा हूं, मजबूर होकर हजारों करोड़ की जायदाद चले गई, एयरपोर्ट में चले गई। सर मैं कहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब का बयान अब तक मैं सुन रहा था, रिक्रूटमेंट में कहे कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई। बेशक हुई, इससे इनकार नहीं। आपके आने के बाद इंसाफ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हक तलफी हुई, आपके आने के बाद हक मिल रहा है। पानी ले लिया गया, पानी मिल रहा है। खेती नहीं होती थी, आज हो रही है। पेंशन नहीं मिलता था, आज मिल रहा है। सब सही है, लेकिन औकाफी जायदादें जो पहले तबाह हो रही थी वो आज भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। सर, you remember, sir, honorable speaker, sir, you remember an announcement was made that CBCID inquiry will be conducted on work properties. सीएम साहब ऐलान करें। क्या हुआ सर? कुछ हुआ सर? कुछ सीआईडी आगे बढ़ी सर? कोई सीआईडी कोई इंक्वायरी करी? सीआईडी कुछ इन्वेस्टिगेट करी? सीआईडी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? क्या किसी को पकड़ी? क्या कोई जमीन रिकवर करी? क्या करी साहब आज तक? बैठे हैं महमूद अली साहब, पूछना चाहता हूं, अजमेर का रुबात कब बनेगा? क्या ऐलान नहीं हुआ? कब बनेगा? बोले थे अजमेर में रुबात, कहां है? सर, हम टीआरएस के दोस्त हैं, अगर उनको पूछते हैं तो हमको भी पूछते हैं कि किस बुनियाद पे आप तायीद कर रहे हैं, क्यों तायीद कर रहे हैं? हमसे भी सवाल होता है। नेक नामी आपकी मुतासिर नहीं, हमारी भी होती है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कायदे मुखर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में बात करते हुए आलेर एनकाउंटर में मारे जाने वाले मुस्लिम नौजवानों के ख़ानदानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर करने वाले अहदेदारों को प्रमोशन दिया गया, जबकि मरने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। आज आप बताइए ऑनरेबल स्पीकर सर, हम दर्द के साथ, कर्ब के साथ कह रहे हैं, आलेर की एनकाउंटर पर रिपोर्ट देंगे। बोले आज कातिलों को प्रमोशन हो रहा है, उन जालिमों को तरक्की दी जा रही है, और मेरे खून बह रहा है, लेकिन उस पर इंसाफ नहीं। कब मिलेगा आलेर के लोगों को इंसाफ? मेरा सवाल है। आज हम ये बातें करते हैं। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन से बीजेपी के अरकान असेंबली की मुअत्तली पर रियासती हाई कोर्ट ने मामले की समाअत की। इस मसले पर गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के मुअत्तल अरकान इटेला राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह की जानिब से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए एक अर्जी दाखिल की गई थी और उनकी मुअत्तली पर सवाल उठाया गया था। सीनियर वकील प्रकाश रेड्डी ने इन मुअत्तल अरकान असेंबली की तरफ से दलाइल पेश किए। बाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में असेंबली और सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज को नोटिस जारी किया। तेलंगाना के वज़ीर आईटी केटीआर और वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने निज़ाम कॉलेज में मुनक़िदा ग्रेजुएशन डे 2022 तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल्स और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स अता किए। बाद उन्होंने नौ तामीर शुदा गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टीआरएस एमएलसी सुरभि वानी देवी, जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, दीगर मौजूद शख्सियात और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। వాస్తవికమైన ప్రపంచం, రియల్ ప్రపంచం ఏందో తెలుస్తుంది। నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏమంటే, ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరితో కూడా, ఇక్కడ ఈ రోజు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న పిల్లలందరితో కూడా, డోంట్ ట్రై జస్ట్ టు బి ఎ జాబ్ సీకర్, బికాజ్ యూ క్యాన్ బి అ ఎంప్లాయీ, యూ క్యాన్ డెఫినెట్లీ పాసిబ్లీ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ కెన్ గెట్ టు అ గవర్నమెంట్ జాబ్, ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్స్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎబిలిటీస్ యూ కెన్ సర్టన్లీ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు తెలంగాణకు వస్తున్నాయి. కానీ it's equally important to dream big. You need not be just a job seeker. You also have the ability
you also have the opportunity to be a job creator for others. ఇదేదో నేను ఊరికే చెప్తున్నాను అని కాదు, ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం వైపు చూస్తా ఉంది. The entire globe is looking at us with renewed interest. But one thing I feel personally sad about is that India did not come out with a world-class enterprise so far. మన వాళ్ళు చాలా మంది ప్రపంచమే గర్వించే కంపెనీలకు చైర్మన్లుగా, సీఈఓలుగా పనిచేస్తున్నారు. ఒక సత్య నాదెల్లా గారు, ఒక సుందర్ పిచాయ్ గారు, మన హైదరాబాదీ శాంతను నారాయణ్ గారు, మన హైదరాబాదీ సత్య, ఇంకా ఇట్లా చాలా మంది బ్రహ్మాండమైన పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు అధిపతులుగా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఒక మాట చెప్తారు, ఊరికే నామకే వస్తే చదువులు చెప్పడం కాదు, బతుకునిచ్చే చదువులు చెప్పండి, కావాలంటే మార్పులు చేయండి, సమాజానికి అవసరమైన చదువులు చెప్పండి, టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకోండి అని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న సందర్భంలో అలాంటి వాళ్ళతో పాటు కేజీ నుండి మొదలు పెడితే బాగుంటుందని ఈరోజు స్కూల్స్లలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాలని ఒక గొప్ప నిర్ణయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుపోతా ఉన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. ఇది చాలా ఇమీడియట్ గా రాకపోయినా భవిష్యత్తులో నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా తెలంగాణ బిడ్డలే ఉంటారు. అది మాత్రం వాస్తవం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఈ గురుకులాల్లో చదువుతున్న పిల్లలు కానీ, రేపు మనం ప్రవేశపెట్టబోతున్న ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్న పిల్లలు కానీ భవిష్యత్తులో ఎక్కడ చూసినా మన పిల్లలే గర్వకారణంగా ఉండేటట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగులు వేస్తున్నారని కూడా మీకు అందరికీ మరొకసారి తెలియజేస్తూ, ఇంకొక మాట కూడా మన ఊరు మనబడని స్కూల్ సంబంధించి అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మార్చే ప్రయత్నం. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज चारशमे के रोज़ मारेडपल्ली के मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल में TSMIDS के चेयरमैन ए श्रीनिवास के हमरा आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने सरकारी प्रोग्रामों के नफाज में आशा वर्कर्स की खदमात की सताइश की। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेंकट, डॉक्टर राजश्री और दीगर ने शिरकत की। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान भारत की आवाम पर महंगाई ने हमला किया है। भारत में खाने के तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस सिलसिले में पेश है BBN के नुमाइंदे सैयद शाह नूर हुदा खादरी और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की ये खास रिपोर्ट। महंगाई की मार झेल रही मासूम अवाम के बजट पर मजीद एक और मरतबा महंगाई का हमला हुआ, जिसमें एडिबल ऑयल की फ़ी किलो कीमत कम से कम 165 रुपये था 190 रुपये पर पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 की वजह अवाम गुज़िश्ता 2 सालों से बेरोज़गारी, महंगाई, माशी पसमानदगी का शिकार हैं। ऐसे में एडिबल ऑयल की दरामद पर पड़े ख़तरात के पेश नज़र घरेलू सारिफिन का बजट डगमगा गया है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से दो चार होने के इम्कानात और इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। रियासत की अवाम ने तेलंगाना के हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो खुर्दनी तेल एडिबल ऑयल की वक्तन फ़क्तन बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल कर कीमतों को मामूल पर लाकर मासूम पसमानदगी का शिकार अवाम को राहत पहुँचाएँ। चुनांचे एडिबल ऑयल की बढ़ती कीमतों के ज़िमन में जिया फूड प्रोडक्ट के प्रोपराइटर विपिन कुमार अग्रवाल से BBN न्यूज़ चैनल हैदराबाद के नुमाइंदे सैयद शाह नूर हुदा खादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के हमराह खुसूसी बातचीत की। इस सिलसिले में पेश है खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, मौजूदा हालात में तेल की कीमत में अचानक इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। एक तरफ तकरीबन 1.5 साल से लोग जो है कोरोना की तरफ से और महंगाई की मार झेल रही हैं, तो दूसरी तरफ प्याज का रेट है, टमाटे का रेट है और दूसरे रेट्स है, इनकी वजह से पब्लिक परेशान है। मौजूदा हालात में जो यूक्रेन और रूस की जो जंग हो रही, उसके तरफ से जो है ऑयल के प्राइसेस में अचानक, एडिबल ऑयल के प्राइसेस में अचानक इजाफा हो गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मौजूदा हालात में जब उस वक्त तकरीबन 1.5 साल पहले 1200 से 1300 रुपये पर 15 kg था, लेकिन आज वही तेल की कीमत करीब 3000 रुपये हो गई। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ जितिया फूड प्राइसेस के प्रोपराइटर हैं। आपका नाम साहब? विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इसकी प्राइसेस में इजाफे की वजह क्या है। आइए हम बात करते हैं विपिन कुमार साहब से। इस प्राइसेस की इजाफे की एक ही वजह है, रूस का वॉर, जिस वजह से हमें क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है वहाँ से, और प्राइस जो है एक महीने में ही 10 से 20 रुपये किलो प्रति लीटर बढ़ गया है। पहले आपको एक महीने पहले तक ये 2250 रुपये 15 kgs मिलता था, आज जो है ये 2800 से 3000 रुपये ब्रांड के हिसाब से मिल रहा है।
Government has taken each and every step to make it reduce. They have made 0% duty on palm oil, and they have reduced even duties on sunflower crude oil that can be imported. ये इस चीज़ का इजाफा इसलिए है क्योंकि हम आज इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, क्योंकि इंडिया में 50 से 60% ऑयल इंपोर्ट होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ के किसानों को, यहाँ की पैदावार को, ऑयल सीड को, ऑयल टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इस नमूने के रिफॉर्म्स लाना चाहिए जिसे हम हमारा कंट्री में खुद पैदा करें और हम इस नमूने की कंट्री बने जिसे हम एक्सपोर्ट कर सके रादर दैन इम्पोर्टिंग ऑफ एनी ऑयल्स। इसे हमें हमारे जो भी है प्राइसेस में हम कभी भी सही रेट रख सकते हैं, या हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं पड़ना पड़ेगा कि आप ये ऑयल का रेट ये हो गया वो हो गया। इस नमूने से इंपोर्ट होने की वजह से ही हम प्राइस का रेट कम नहीं कर सकते। अभी वी आर डिपेंडेंट टोटली ऑन इम्पोर्ट्स। मौजूदा हालात में पिछले 1.5 साल पहले क्या रेट था साहब इसका 15 किलो ऑयल का? 2200 रुपये था 15 किलो का रेट, 15 kg का रेट 2200 रुपये था। इस वॉर की वजह से आज का रेट जो है 2700 से 3000 रुपये तक पहुंच गया है 15 किलो का। फिलवक्त 1 किलो तेल कैसा मिल रहा है? 1 लीटर ऑफ ऑयल यू आर गेटिंग एट अ प्राइस ऑफ पाम ऑयल मिल रहा है 170 रुपीज़, सनफ्लावर मिल रहा है 180 रुपीज़, ग्राउंडनट आपको 200 रुपीज़ हो गया है, कोकोनट ऑयल आपको जो है सो 280 से 300 रुपीज़ हो गया है, सरसों मस्टर्ड ऑयल आपका जो है तकरीबन 240 रुपीज़ हो गया है। तो हर ऑयल में आपके पास में आज रेट बढ़ जा रहा है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। शहर हैदराबाद में इन दिनों नया आधार बनाना या आधार कार्ड में तरमीम करवाना जुए शेर लाने से कम नहीं। हुकूमत ने अमीरपेट में रीजनल सेंटर बनाया है। अलावाज़ी शहर के अहम मकामात पर भी मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन अमले की कमी और अहदेदारों की लूट खसोट से आवाम परेशान हाल है। अमीरपेट जैसे अहम सेंटर पर सिर्फ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 रिसेप्शनिस्ट है। यहाँ शहर के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ज़रूरतमंद रुजू होते हैं, जिन्हें सुबह 8 बजे तक 11 बजे टोकन तकसीम किया जाता है और 11 बजे के बाद अमला हाज़िर दफ्तर होता है। इस तरह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का वक्त यूं ही ज़ाया हो जाता है और नंबर आने तक शाम हो जाती है। एक ज़रूरतमंद मोहम्मद सादुल्ला खान ने बताया कि वो उनकी दुख्तर के आधार के लिए कई बार रुजू हो चुके हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मायूस किया जाता रहा है। मेहदीपट्टनम के सेंटर में तो खुलेआम रिश्वत तलब की जा रही है। नया आधार बनाने के लिए कम से कम 500 रुपये और तरमीम के लिए 200 रुपये रिश्वत ली जा रही है। बावसूख ज़राए के मुताबिक दीगर सेंटर्स की हालत भी कुछ ऐसे ही है। अक्सर सेंटर्स में तो आवाम को बैठने के लिए कुर्सियां तक मैसर नहीं हैं, जबकि बाबुल दाखिले पर लिखा है कि माजूरीन को ऑफिस तक पहुंचाने के लिए व्हील चेयर फराहम किए जाएंगे। हुकूमत के दावे और अमल में बहुत बड़ा फ़र्क है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इस जानिब तवज्जो देकर आवाम को राहत पहुंचाए। आदिलाबाद के इलाके विद्यानगर में वाक़ कस्तूरबा गांधी स्कूल में 46 स्टूडेंट्स नाश्ता खाने के बाद पेट दर्द और तबीयत ख़राब होने की शिकायत की, जिस पर उन्हें फौरी रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच करते हुए इलाज किया। वाक़े की इत्तला पर ज़िला कलेक्टर सिकता पटनायक ने रिम्स अस्पताल पहुंचकर स्टूडेंट से मुलाकात की और उनकी तबीयत के बारे में डॉक्टर्स से दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि बीमार स्टूडेंट्स का खुसूसी इलाज किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को बेहतर इलाज की हिदायत दी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर रिम्स डायरेक्टर जय सिंह राठौड़, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रणीता और दीगर मौजूद थे। ఇక్కడ రావడానికి కొంతమంది ఏం రిపోర్ట్ చేశారంటే ఇక్కడ వెహికల్స్ సరిగా లేకుండే, సో అది ఆ యాంగిల్లో కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకొని మాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను. సో ఒక ఫ్యూ అవర్స్లో రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 46 స్టూడెంట్స్ కండిషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ స్టేబుల్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. కానీ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ టైంలో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఇష్యూస్ అండ్ అదర్ సచ్ ఇష్యూస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ
to be prevented at all costs. So not only today's incident law inquiry, but also ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ షుడ్ నాట్ రిపీట్ అని, దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ బై ఎండ్ ఆఫ్ డే మాకు క్లారిటీ విల్ కమ్. ఓకే. సో కొంతమంది మీడియా మిత్రులు కూడా కొన్ని ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి మీరు ఇష్యూస్ రేస్ చేశారు, దట్ అక్కడ టీచర్స్ రెస్పాన్స్ అంత సరిగా లేకుండే. సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ గురించి కూడా నేను ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్కి ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పాము. సో ఇన్ అ ఫ్యూ అవర్స్ వీ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ క్లారిటీ. దెన్ కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్ మీద డెఫినెట్లీ యాక్షన్ తీసుకుంటాము. బట్ మై మెయిన్ కన్సర్న్స్ టూ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సేఫ్టీ అండ్ కంఫర్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉన్న 46 స్టూడెంట్స్. అది డైరెక్టర్ గారు నాకు అష్యూర్ చేశారు దట్ ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ స్టేబుల్ అండ్ నో ఇష్యూస్, కానీ అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నారు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ అట్ ఆల్. యాక్చువల్లీ నాట్ ఓన్లీ మన స్కూల్స్, ఆల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఎట్లా రిపీట్ చేయకుండా చేయాలా, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ఆల్ యాక్షన్. ప్రతిరోజు కూడా మేడం వీళ్ళకి సరిగ్గా టిఫిన్ పెడతలేరట. అది ఒక అమ్మాయి చెప్పింది, రైస్ నైట్కు వేడి చేసి పెడుతున్నారు. అది నేను డెఫినెట్లీ ఎంక్వైరీ చేస్తాను, బికాస్ మీరు ఇప్పుడు రేస్ చేశారు కాబట్టి ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఈ పాయింట్ మీద ఎంక్వైరీ చేయమని కూడా చెప్తాను. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत व सलामती और लंबी उम्र के लिए शाहजहां फंक्शन हॉल में खुसूसी दुआ की गई। इस तकरीब में याखुजपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुकामी मजलिस कायदीन कारकुनान और मुकामी मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। आदिलाबाद के इलाके बंगारीगुड़ा में वाक़ तालिबात का दीनी मदरसा मारिया लिलबनात में यूनिफॉर्म तकसीम तकरीब का इनेकाद नाजिम मदरसा मौलवी अब्दुल अजीम की क़यादत में अमल में लाया गया। इस तकरीब में रुकन असम्बली जोगुरमना और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS पार्टी अखिलती क़ायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने शिरकत करते हुए तालिबात में यूनिफॉर्म तकसीम किया। मौलवी एहतशाम ने तकरीब की नज़ामत की, जबकि नाजिम मदरसा अब्दुल अजीम ने मदरसे की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद और मदरसे के ज़िम्मेदारान व मुकामी बुज़ुर्ग नौजवान के अलावा दीगर मौजूद थे। प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब ऑफ भैंसा डायमंड LN नंद किशोर ने इंटरनेशनल वुमेंस डे की निस्बत से भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के शोबे गायनाकोलॉजी और तालीम से वाबस्ता टीचर्स की नुमाया खिदमात पर उन्हें तहनीत पेश की और मोमेंटो से नवाजा। उन्होंने अपने खिताब में ख़वातीन की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही हैं। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। KCR सेवादलम के रियासती सदर रफ़त अमीर ने शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के जनता ऑटो यूनियन के सदर नुसरत खान को KCR सेवादलम मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िला सदर मुक़र्रर किया। आज शहर के R&B गेस्ट हाउस में कई ऑटो ड्राइवर्स ने नुसरत खान की चालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जबकि इस मौके पर अब्दुल मजीद को नायब सदर, जय दलित को ज़िला जनरल सेक्रेटरी और फसी को जॉइंट सेक्रेटरी मुक़र्रर किया गया। पोस्ट दिए उम्मड़ी आदिलाबाद जिला का और आदिलाबाद से भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिए, 2 पोस्ट दिए मेरे को। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ रफ़त अमीर जी का, क्योंकि उन्होंने हमारे हेनेबल प्रेसिडेंट है और उन्होंने ये भी बोले अगर कहीं तुम्हारे रुकावट आ रही होंगी तो मैं 3 घंटे में तुम्हारे पास पहुँचता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हारे, और तुम जो है सो पूरे आदिलाबाद उम्मड़ी आदिलाबाद में पूरा वर्क करो, हर किस्म की जो है सो गैदरिंग करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना। हम तुम्हारे साथ है, हम जो है सो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा काम अच्छा है। अभी तुम ये पोस्ट ले जाओ और तुम्हारा इंशाल्लाह और आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारा काम अच्छा है। और ये जो मेरी टीम है अभी डिस्ट्रिक्ट बॉडी, जय दलित जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट जो है सो माजिद, और जो है सो जॉइंट सेक्रेटरी फसी भाई, और जो है सो डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंबर जो है सो तकरीबन लोग आए यहाँ पे। और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम देख के मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं सब कुछ, और इंशाल्लाह आले पैमाने पे काम करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे इंशाल्लाह। तनाज़ात में घिरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज़ के खिलाफ एहतजाज करने आज चार मीनार के पास पहुंचे अफराद को पुलिस ने प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया। एहतजाज करने पहुंचे अफराद का कहना था कि फिल्म के बाद सीन से मुसलमानों के जज्बात मजरू हो रहे हैं और एहतजाज करना उनका जमहूरी हक़ है। दरअसल आज फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए फिल्म के बारे में बात की। हम लोग यहाँ पे आए थे, 2 मिनट का मीडिया को पूरा क्या हुआ क्या मैडम, क्या वजह क्या है,
बोलिए बोलिए हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री है। इसके अंदर किसी भी रिलीजन को हर्ट करने के लिए मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सबको एक साथ वो करें। उसके क्या हुआ क्या मैडम जी? बिल्कुल गलत है कि हम हमारी आवाज नहीं उठा सकते। हमको देना चाहिए। क्या से प्रोटेस्ट करें? प्रोटेस्ट कहीं कर रहे थे आप? ये पिक्चर जो कश्मीरी फाइल्स है टेररिस्ट बताया गया है, उसको बैन करने के लिए उसने मुसलमानों को जो आतंकवादी बताए और जिस तरीके से मैं जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल जी, सबसे पहले एयरपोर्ट से मैं यहीं आके ये जो यात्रा है इस फिल्म की द कश्मीर फाइल्स की, वो यहीं से भाग्यलक्ष्मी जी के मंदिर से ही शुरू की थी। अब फिल्म हमारी परसों रिलीज़ होने वाली है। हमने मन्नत मांगी थी 4 साल से, अब जब ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे आके हम अपनी जो यात्रा है उसका समापन करने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। फिल्म में ये कहा जा रहा है काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है, उस बारे में यहाँ नहीं, हम ईश्वर के सामने, देवी के सामने खड़े होके ये सब बातें नहीं करते। हम ईश्वर और देवी की बात करिए, उसके बारे में करने को तैयार हूँ। शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने इस माह के 7 तारीख को पेश आए 10 लाख रुपए के स्नैचिंग मामले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से पूरे 10 लाख रुपए बरामद कर लिए। इसलिए उन्हें सोचा कि 10 लाख रुपए लेके ऐसा केस का लगाया तो मेरा ऊपर नहीं होता, हम लग जाके वो पैसे खाएंगे बोल के इंटेंशन से वैसा करा। बाद में वेरीफाई करे तो वो पैसे पूरा हम लोग इन्वेस्टिगेशन में रिकवरी करा और उसको आज रिमांड भी कर रहे हैं। का कैश है, इसके ऊपर कुछ तो भी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। उन्हें काम करने वाले भी 3-4 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे। उसमें इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, वो फाइनेंशियल इश्यूज है। इसके बारे में उन्हें जाके ऐसा आए तो अपन को हो जाता बोल के थोड़ा मिसकम्युनिकेट हुआ है। क्योंकि इसमें एक ही है, उन्हें एक ही इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें आने के बाद और एक दोस्त इससे पहले था, उन्हें रवि बोल के इसका फ्रेंड था, उसको कैश बैक ले दे के मैं इमरजेंसी काम पे बाहर जा रहा हूँ, घर को जाके आने के बाद वो पैसे भी ले लेता हूँ बोले तो उन्हें उनके पास लगा। को इन्फॉर्मेशन कौन दिया यहाँ से 10 लाख रुपए बाहर आ रहे बोल के? हमको एक गुमास्ता सुपरवाइजर है इन्हें, नहीं कलेक्शन बॉय हेड ट्रांसपोर्ट बोल के अपना बेगम बाजार पे एक ऑफिस है, उन्हें प्रोद्यूटर कड़पा वाला का, वहाँ पे उन्हें ट्रांजैक्शन चलता रहता, उसमें इन्हें जाके इन्हें गुमास्ता है। उनको ओनर से पूछे तो उन्हें जाके ऐसा पैसे लेके आओ बोल के कैशियर है उन्हें। इसलिए स्पेंडर बाइक का तो कुछ भी नहीं है, स्पेंडर बाइक का नहीं है। इन्हें ऑलरेडी वहां से जो टाइम पे इन्हें खींच के चले गया बोल के जो दिया अपना सीसी फुटेज में, ऑलरेडी उन्हें बैग भी वहां से लेके गया बोल के अपन को कंप्लेंट में दिया था। वो चेक करने के बाद वो बैग उसके साथ ही है, इसलिए अपन को डाउट आया था। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली में सीएम केसीआर का अहम ऐलान, कहा 80,039 ओहदों पर तकरूरी के लिए जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। सरकारी मुलाजमतों को पूर्ण करने सीएम केसीआर के ऐलान का अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया खैर मकदम, कहा सरकारी मुलाजमतों और आला ओहदों पर मुसलमानों की भी की जाए तकरूरी। सीएम केसीआर का सरकारी मुलाजमतों को पूर्ण करने का ऐलान, तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने भी किया इस्तकबाल, कहा कांग्रेस भर्तियों का कर रही थी मुतालबा। सरकारी मुलाजमतों को पूर्ण करने सीएम केसीआर के ऐलान पर तेलंगाना भर में जश्न, टीआरएस कायदीन कारकुनान, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और बेरोजगार नौजवानों ने सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में वक्फ जायदादों के अदम तहफ्फुज पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम, असेंबली में वक्फ जायदादों के लिए सीबीसीआईडी तहकीकात की पेशरफ्त पर किया सवाल। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन से बीजेपी के अरकान की मुअत्तली, रियासती हाई कोर्ट ने की मामले की समाअत,
असेंबली और सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज को जारी किया नोटिस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।